in which one of the following? Dermis of the skin, skeletal tissue, hemopoietic tissue, lymphoid organs, neurons. रेटिकुलर फाइबर्स किस में प्रेजेंट होते हैं? लिम्फ, ठीक है, lymphoid organs में. Venous blood is higher to arterial blood in oxygen, hemoglobin, hematocrit, platelet, leukocyte. ठीक है. Neural crust cells are separated from which one of the following? Mesoderm, neural plate, neural tube, neural grooves, yolk sac. Neural tube. Incidence is defined as old plus new cases या only new cases? New cases. Enzymes in saliva that prevents iron utilization by bacteria is lactoferrin, IgA protease, lactoperoxidase, IgG protease oxidase. Standard deviation measures include confidence interval, confidence errors, sample bias, variability among individuals. ठीक है. Drug of choice of tinea solium is praziquantel, niclosamide, metronidazole, ciprofloxacin. Praziquantel. Which one of the following cells are present in between the interalveolar septum? Macrophage, Clara cells, stellate cell, alveolar cell, goblet cells. In type test in speeders, the correct parameter would be decrease plasma osmolarity, no change in osmolarity of urine, decrease urine osmolarity, increase urine osmolarity, decrease reabsorption of proximal convoluted tubule. ठीक है, decrease urine osmolarity. SLE के अंदर कौन से टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं? टाइप 3. Cardiolipin phospholipid is present in which one of the following? RER, mitochondria, SCR, plasma protein, Golgi bodies. A pregnant lady in 30 weeks taking only iron supplements, she should be deficient in folic acid, vitamin B12, vitamin B6, magnesium, phosphorus. Folic acid. From sitting to standing, there is a compensation by which underlying mechanism? Decrease heart rate, decrease increase total peripheral resistance, increase cardiac output, decrease venous return. ठीक है. Babinski sign is due to damage of which one of the following area? Basal ganglia, brainstem, pyramid, spinal cord, cerebellum. Vertical group of inguinal lymph node receive drainage from upper limb, lower limb, anal canal, big thumb, rectum. Lower limb. Brunner glands are present in small intestine, jejunum, ileum, duodenum, colon. Duodenum. What is the function of dead space? Exchange of gases, blockage of gases, conditioning of air, increase while standing, increase with age. ठीक है. Renal tubular necrosis would result in which one of the following? Hyperkalemia, hypernatremia, hypokalemia, increased urine volume, increased concentrated urine. Which organism is transmitted in blood transfusion? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कौन से वायरस जो हैं ट्रांसमिट होते हैं? सीक्वेंस वाइज बताएं. ठीक है. कॉमन कॉज ऑफ लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज विच वन ऑफ दीज? ओल्ड एमआई, इस्केमिक हार्ट डिजीज, हाइपरकैलेमिया, सीसीएफ. ओल्ड एमआई. ठीक है. चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 178, एमसीक्यू नंबर 601. ऑल्फैक्शन इज कैरिड बाय विच नर्व? ठीक है. ऑल्फैक्शन हमारे पास फर्स्ट क्रेनियल नर्व होती है ना, ऑल्फैक्टरी नर्व. 602 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडमार्क ऑफ नेक? ठीक है. तो आपने इसका सीक्वेंस याद रखना है. स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड इज ग्रेटर देन स्क्लेनस एंटीरियर. ठीक है. 603 पेशेंट केम टू कार्डियोवास्कुलर चेकअप हैविंग हार्ट रेट 48. 48 अब हार्ट रेट ये ब्रेडिकार्डिया के अंदर है या नॉर्मल है? ब्रेडिकार्डिया है ना. ठीक है. तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो एथलीट्स होते हैं ना आपके पास, जब भी सिनेरियो है तो आपने ये चीज़ डिटो याद कर लेने कि एथलीट्स के अंदर हार्ट रेट कम होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम उनका ज़्यादा होता है. ठीक है. तो ये किसके अंदर होता है? एथलीट्स के अंदर. 604 इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर्म्ड बाय विच सेल्स? कौन से सेल्स बनाते हैं? प्लाज्मा सेल्स. 605 डीप सी डाइवर्स असेंड सडनली टू सरफेस, विच ऑर्गन टॉक्सिसिटी विल अकर एंड कॉज ऑफ डेथ? ठीक है. तो डीप सी डाइवर्स के अंदर सीजर्स डिवेलप हो जाते हैं. ठीक है. ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी की वजह से. 606 ओरल ग्लूकोज लोड.
विल इंक्रीज विच हार्मोन, तो ये कौन सा हार्मोन इंक्रीज करते हैं? ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, डेल्टा ऑप्शन GIP, ठीक है। 607 मैकेनिज्म ऑफ अपोप्टोसिस इन ऑटोइम्यून डिजीज इज, किसके थ्रू करते हैं? मॉलिक्यूलर मिमिक्री के थ्रू, ठीक है। रीनल प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज बाय, रीनल प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज कब होता है? जब रीनल आर्टरी स्टेनोसिस या रीनल आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए। परसेप्शन ऑफ डिस्गस्ट, ठीक है, तो ये वाला जो परसेप्शन होता है, डिस्गस्ट कहते हैं कोई बैड एक्सप्रेशन, इस तरह वाला जो परसेप्शन होता है वो ब्रेन का कौन सा एरिया इसके अंदर इन्वॉल्व होता है? लेफ्ट साइड का इंसुलर कॉर्टेक्स, ठीक है। विच सेंसेशन इज कैरिड थ्रू द डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, ठीक है, तो डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस ये किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? इसमें सेंसेशंस होती हैं फियर की और एंजाइटी, ठीक है। Subcutaneous part of external anal sphincter contains smooth muscles present around the anus. तो जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है उसके जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो किस बॉडी के साथ अटैच होते हैं? कॉक्सिजियल बॉडी, ठीक है, ये कॉक्सिजियल बॉडी प्रेजेंट होती है एनल स्फिंक्टर के दरमियान, ठीक है। 612 which hepatitis is common in Asia एंड विच हैज़ लीस्ट कॉम्प्लिकेशन, सबसे कम कॉम्प्लिकेशन किसकी होती है? हेपेटाइटिस ए की, और ये मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। 613 फीमेल प्रेजेंटेड विद पैलर फैटीग एंड सिवियर लॉस ऑफ वाइब्रेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है? तो अब पैलर है और सिवियर लॉस ऑफ वाइब्रेशन यानी कि CNS के सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। हाइपर वेंटिलेशन अकर ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जब भी हाइपर वेंटिलेशन होती है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, बीटा ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्लो ग्रोइंग मेलिग्नेंसी ऑफ द थायराइड, ठीक है, तो स्लोली प्रोग्रेसिंग ट्यूमर कौन सा होता है? पेपिलरी कार्सिनोमा, ठीक है। अच्छा, ये आपने बाकी के भी थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लेने हैं, जैसे फॉलिकुलर कार्सिनोमा है। अब पेपिलरी में आपने याद रखना है कि ये रेडिएशंस के साथ एसोसिएटेड होता है, इसमें सोमामा बॉडीज होती हैं, ऑर्फन एनियाई न्यूक्लियस होता है, स्लोली ग्रोइंग होता है, लेकिन इसका बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है, ठीक है। और जो फॉलिकुलर होता है वो कैप्सूल को इन्वेड कर लेता है, ये हमें डिफ्रेंसिएशन फीचर होता है फॉलिकुलर कार्सिनोमा को फॉलिकुलर एडिनोमा से, और इसका हेमेटोजीनियस स्प्रेड होता है और ये सेकंड बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है, ठीक है। लेकिन जब मेडलरी कार्सिनोमा इसका MCQs आते हैं कि इसे कहाँ से रिलीज होता है? कैल्सिटोनिन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। और मैन 1 और 2 के साथ भी इसकी एसोसिएशन आती है, लेकिन इसकी पुअर प्रोग्नोसिस होती है, और वेरी पुअर प्रोग्नोसिस किसकी होती है? एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा की, और वो हाईली अनडिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर होता है। नेक्स्ट MCQs, विच वन पासिस थ्रू इश्कियोरेक्टल फोसा, से कौन सी नर्व पास करती है? इंफीरियर रेक्टल नर्व। ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड फ्लो टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज, एक्सरसाइज के दौरान किस चीज़ को ब्लड डिक्रीज हो जाता है? अच्छा, ये आपने याद रखना है, किडनी इज ग्रेटर देन सप्लैंक्निक वेसल्स। अगर ऑप्शन में किडनी होता तो आप किडनी को चूज करते, ठीक है। अगर किडनी नहीं है तो देन आप चूज कर सकते हैं स्प्लेनिक वेसल्स। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सार्कोमियर लेंथ किस चीज़ की लेंथ अनचेंज रहती है? तो हमने बात की थी कि A बैंड अनचेंज रहता है, I बैंड और सार्कोमियर की लेंथ डिक्रीज होती है, और H जोन जो है वो प्रॉपरली डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। 619 इजैकुलेशन अकर ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो किस नर्व का फंक्शन है ये? पुडेंडल नर्व का ओवरऑल, ठीक है। अगर पुडेंडल नर्व नहीं होगी तो हम सिंपैथेटिक भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। इजैकुलेशन बेसिकली इसके 2 पार्ट्स होते हैं, जो इमिशन होता है वो कौन कंट्रोल करता है? सिंपैथेटिक, और इजेक्शन वाला जो पार्ट होता है वो पुडेंडल नर्व होती है, और इरेक्शन कौन करवाता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व। 620 पेशेंट विद राइट साइड हेमीप्लेजिया, ठीक है, राइट साइड का उसकी हेमीप्लेजिया हुआ है, और फेशियल पाल्सी ऑफ द लेफ्ट हाफ ऑफ द फेस। अच्छा देखिए, हम ये कॉन्ट्रालैटरल साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक साइड की बॉडी में हेमीप्लेजिया राइट साइड में, और जो फेशियल पाल्सी है वो ऑपोजिट साइड पे हो रही है, ठीक है। तो इसमें एरिया कौन सा इन्वॉल्व है? पॉन्स इन्वॉल्व है, ठीक है। ये मैंने आपको एक MCQs भी रफ़ी का पॉइंट शेयर किया था, उसमें था कि अगर हम सेम साइड का होगा तब कौन सा एरिया डैमेज होगा, ठीक है, और अगर ऑपोजिट साइड का होगा तो आपने पॉन्स को चूज़ करना है। नेक ऑफ फीमर इज सप्लाइडेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो नेक ऑफ फीमर की जो नेक होती है उसको कौन सप्लाई कर रही होती है? मीडियल एंड लैटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और अगर ए वस्कुलर नेक्रोसिस हो जाए हेड का तो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है? ए वस्कुलर नेक्रोसिस मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, ठीक है।
और वैसे ओवरऑल हेड को कौन सप्लाई कर रही थी? रेटिनेकुलर आर्टरी। और बच्चों में कौन सी होती है? बच्चों में कौन सी होगी? हेड ऑफ ह्यूमर को ऑब्चुरेटेड आर्टरी, ठीक है। 622 पेशेंट विद हाइपरथायराइडिज्म साइन एंड सिम्टम्स विल आल्सो हैव अदर प्रॉब्लम, ठीक है। तो हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट में बाकी विजुअल प्रॉब्लम्स भी आ रही होती हैं, ठीक है। जैसे हमने ग्रेव्स डिजीज में बात की कि ऑफ्थेल्मोपैथी हो जाती है, डर्मोपैथी हो जाती है। 623 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज H2 रिसेप्टर ब्लॉकर कौन सा होता है? सिमेटोडिन होता है, ठीक है। टिप ऑफ द नोज सप्लाइड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग से कौन सी नर्व सप्लाई करी होती है? ऑफ्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, फिफ्थ नर्व होती है। 625 ए गर्ल हैज ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन बट एल्वुलाई आर स्टिल इरिटेटेड बाय ब्रोंकस डू नॉट कोलैप्स, दिस इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। क्यों? क्योंकि एल्वुलाई के अंदर पोर्स होती हैं जो उसकी वेंटिलेशन को कंटिन्यू करवाती हैं, जिसकी वजह से वो एरेटेड रहती हैं प्रॉपर्ली, ठीक है, इसलिए वो कोलैप्स नहीं करती। 626 ड्राई हीट। अच्छा, जो ड्राई हीट होती है ना, उसके साथ कौन सी चीज़ किस मेथड के थ्रू होती है? ऑक्सीडेशन के थ्रू बैक्टीरिया को वो किल करती है। और जो मॉइस्ट हीट होती है वो बैक्टीरिया को कैसे किल करती है? थ्रू कोआगुलेशन। ये आपने दोनों पॉइंट्स याद रखने। 627 pregnant lady with complaint of mitral stenosis developed dyspnea and orthopnea that worsen to which one of the following reason। अगर प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर पल्मनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी, पल्मनरी सिम्टम्स हैं, तो उसे रिस्पायरेटरी सिम्टम भी आएंगे, यानी कि उसे सांस लेने में दुश्वारी आएगी, ठीक है। डिस्निया वाले सिम्टम आएंगे, ऑर्थोपनिया हो जाएगा उसे, ठीक है। 628 ए पेशेंट हैविंग ब्लीडिंग टेंडेंसी डायग्नोज्ड एज वॉन विलीब्रेंड डिजीज। तो कौन सा टेस्ट इसमें वॉन विलीब्रेंड डिजीज में करवाते हैं? इसमें जो ब्लीडिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। हीमोफीलिया के अंदर एपीटीटी इंक्रीज होता है, आईटीपी के अंदर भी ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होता है, लेकिन वॉन विलीब्रेंड डिजीज के अंदर दोनों चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं, एपीटीटी और ब्लीडिंग टाइम दोनों। और डीआईसी के अंदर सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया अकर ड्यू टू चेंज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के अंदर क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा हो जाती है? कैल्शियम, ठीक है, इसके अंदर चेंजेस आती हैं। मैन्यूब्रोस्टर्नल टाइप ऑफ ज्वाइंट, ठीक, इस टाइप के अंदर आते हैं सेकेंडरी कार्टिजेनियस टाइप ऑफ ज्वाइंट। पेशेंट नॉन केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर नाउ प्रेजेंटेड इन ओपीडी विद कंप्लेन ऑफ ज्वाइंट पेन। अब एक पेशेंट है, उसे गैस्ट्रिक अल्सर भी है, साथ ज्वाइंट्स पेन है, तो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? सेलिकॉक्सिब होगी, ठीक है, ये कॉक्स-2 इनहिबिटर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5-HT एंटागोनिस्ट यूज्ड इन द पेशेंट विद डायरिया। तो डायरिया में हम कौन सी यूज़ करते हैं? एलोसेट्रॉन, ठीक है, ये हम जो बाउल डिजीज़ के अंदर यूज़ करते हैं, ये भी 5-HT3 रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है। A male patient is a known case of renal failure presented with sign and symptom of upper respiratory tract infection. Which one of the following antibiotics are safe in this patient? तो renal failure है, तो आप कौन सी respiratory tract का infection है, कौन सी antibiotic बहुत ज़्यादा safe होती हैं? Azithromycin, ठीक है। Which hormone works on the kidney? किडनी के ऊपर कौन सा हार्मोन एक्ट कर रहा होता है? Aldosterone, ठीक है। आफ्टर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन्फेक्शन कॉमनली ट्रांसमिटेड। तो कोई भी ट्रांसप्लांट होता है उसमें सबसे पहले कॉमनली ट्रांसप्लांट के बाद कौन सा वायरस ट्रांसमिट हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाती है? साइटोमेगालो वायरस। अच्छा, अगर किडनी के अंदर ट्रांसप्लांट हो तो कौन सा वायरस होता है? पोलियोमा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्राइमरी जनरलाइज्ड एपिलेप्सी एंड मायोक्लोनिक सीजर्स आर। तो उसकी कौन सी होती है? वेलोप्रिक एसिड होती है। ट्रू अबाउट स्टेंसन डक्ट इज। स्टेंसन डक्ट का ट्रू एमसीक्यूज क्या है? कि ये बक्सीनेटर मसल को पियर्स करती हुई पास हो रही होती है। ट्रांसपोर्ट डिपेंड करती है ऑन थिकनेस इज। किस चीज़ की थिकनेस पे डिपेंड करती है? डिफ्यूजन की। टाइप 1 जोन 1 होता है ना जो लंग का, वहाँ हमारे पास क्या होती है? बेसिकली वहाँ एयर जो है वो ज़्यादा होती है, वेंटिलेशन ज़्यादा होती है और ब्लड कम होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से डेड स्पेस जो है उस एरिया में ज़्यादा होती है जोन 1 में। इफेक्ट ऑफ मल्टीपैरिटी ऑन सर्विक्स। अच्छा, जब भी मल्टीपैरिटी होगी तो उसके अंदर इफेक्ट क्या आएगा? उसमें कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स के चांसेस और एडिनोमायोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो नली पैरिटी कहते हैं कि जिनका अभी तक जिन्होंने कंसीव नहीं किया, ठीक है, तो नली पैरिटी के अंदर किस चीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं? सी एंडोमेट्रियम और एंडोमेट्रियोसिस के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 20-week pregnant woman with miscarriage presented with nipple discharge. What is the possible cause? ठीक है, तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड प्रोलैक्टिनोमा कॉज हो चुका है, ठीक है।
वाइट ब्लड सेल ओरिजिनेट फ्रॉम द प्रिकर्सर सेल इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो वाइट ब्लड सेल ओरिजिनेट कहाँ से होता है? इसका प्रिकर्सर बोन मैरो के अंदर होता है। एब्ड्यूसिंग नर्व लीजन लोकेशन इसकी कहाँ पे होती है? अच्छा, ये आपने याद रखना है। मिड ब्रेन से कौन कौन सी नर्व पास करती हैं? 3 और 4। पोन्स से, पोन्स, ठीक है, 5 to 8। और मेडुला से कितनी पास करती हैं? मेडुला से 9, 10 और 11, ठीक है। ड्यूरिंग एक्लेमेटाइजेशन एट हाई आल्टीट्यूड फॉलोइंग चेंजेस विल अकर, ठीक है। तो हमने कल भी किया था कि इसमें डिफ्यूजन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, पल्मोनरी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है और पल्मोनरी वेंटिलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। गट बैक्टीरिया हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ, कौन सा विटामिन बनता है गट के अंदर? बैक्टीरिया के अंदर विटामिन के बना रहे होते हैं। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन पेशेंट विद HIV के अंदर कौन सा होता है? कैंडिडा होता है। कैटिकोलामीन कॉजेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये क्या करवाती हैं? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा देती हैं। रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स डिटेक्ट चेंजेस इन प्रेशर एंड वाइब्रेशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये पक्सिनियन कॉर्पसल्स जो है वो रैपिडली डिटेक्ट कर लेते हैं प्रेशर को या फ्रीक्वेंसी को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्चेस ओवर द रूट ऑफ लेफ्ट लंग, तो लेफ्ट लंग के ऊपर से कौन सी आर्च पास कर रही होती है? आर्च ऑफ एओर्टा पास कर रही होती है, ठीक है। ये आपने बाकी MCQs भी याद रखने के, जो एजाइगस वेन होती है वो राइट लंग के रूट के ऊपर से पास कर रही होती है, ठीक है। और एओर्टा इसके लेफ्ट रूट ऑफ द लंग के पोस्टीरियरली पास कर रही होती है, ठीक है। और एंटीरियरली नर्व कौन सी होती है? फ्रेनिक नर्व होती है। और पोस्टीरियरली नर्व कौन सी होती है? वेगस नर्व होती है। 650 a young thin lean boy with sign of tetany having blood calcium level 6 and urine excretion level is 50। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि कैल्शियम का लेवल डिक्रीज है ना, ठीक है। तो और टेटनी डेवलप हो गया, तो इसका मेन कॉज क्या होता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है। A woman presented with whiplash injury during the RTA result in a damage to C5 and C6। तो ये कौन सी नर्व सप्लाई है बेसिकली जिसकी वजह से फ्लेक्शन ऑफ द फोरआर्म इफेक्ट हो गई है? मस्कुलोक्यूटेनियस, वेरी गुड। एंटीसीरा एग्लूटिनेट्स विद A and D, प्लाज्मा हैज़ एंटी-B एंटीबॉडीज, ठीक है। तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? अच्छा देखिए, अगर उसमें एंटी-B एंटीबॉडीज है ना तो उसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव होगा। अगर उसमें एंटी-A एंटीबॉडीज होती हैं तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होता? अगर उस पेशेंट के अंदर उसका B पॉजिटिव होता, ठीक है। 653 डॉक्टर इज हैविंग मोर फियर टू डू मीडियन एपिजियोटमी। मीडियन एपिजियोटमी करते हुए कौन सी चीज़ के डैमेज का रिस्क ज़्यादा होता है? एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और अगर हम मीडियो लैटरल एपिजियोटमी करें तो कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं? बल्बोस्पोंजियोसिस, ठीक है। और मीडियो लैटरल एपिजियोटमी स्ट्रक्चर एट और रिस्क पे साथ साथ कौन सा होता है? लिवेटर एनआई भी एट रिस्क पे होता है क्योंकि वो मेन पेल्विक की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है ना। और मीडियन एपिजियोटमी हमने कर लिया कि उसमें एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये रिस्क होता है। 654 हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर एंड कार्डियोमायोपैथी अकर इन द डेफिशिएंसी ऑफ, कौन सा विटामिन डेफिशिएंट है इसमें? B1, थायामीन की डेफिशिएंसी है। पेशेंट विद क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट फेल्सिपेरम मलेरिया, नेक्स्ट ड्रग गिवन इज, तो आप नेक्स्ट उसमें कौन सी ड्रग देते हैं? आर्टीमेथर विद कॉम्बिनेशन देंगे उसे। 656 लंग कंप्लाइंस इंक्रीजेस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। लंग की कंप्लाइंस एम्फाइसीमा के अंदर, ओल्ड एज के अंदर एम्फाइसीमा और ओल्ड एज इन दोनों के अंदर लंग की कंप्लाइंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और पल्मोनरी फाइब्रोसिस में लंग की कंप्लाइंस इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है? डिक्रीज हो जाएगी। ट्रू अबाउट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है ना ये बेसिकली ना साइकेट्रिक थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, इस वजह से सारा कुछ इशू आ रहा होता है, ठीक है। 658 स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ए पेशेंट इंक्रीज विदाउट चेंज इन हार्ट रेट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो अब उसमें बेसिकली स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ कौन सी एसोसिएशन आती है? अगर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो पल्स प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा ना, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम अगर एक पेशेंट में इंक्रीज हो रहा है उसका मीन आर्टीरियल प्रेशर भी इंक्रीज होगा और पल्स प्रेशर भी इंक्रीज होगा।
659, a patient presented with chronic fever, night sweats, and cervical lymphadenopathy, epithelioid cells in the sputum. एक्सरे शो डिफ्यूज नोडुलर अपेस्टी. तो डायग्नोसिस क्या है? टीबी का स्नैरियो है. तो ठीक है, मतलब नाइट स्वेट्स हैं, फीवर है, ये आपको डिटो स्नैरियो है. इन बेजल मेटाबॉलिक स्टेट हार्ट गेट्स 60% एनर्जी फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो 60% एनर्जी हम किससे ले रहे होते हैं? फैट से. लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? स्प्लेनिक आर्टरी की. ठीक है, और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी. जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है ना, वो हेपेटिक आर्टरी की पहले ब्रांच होती है. ठीक है, वो आगे फिर फर्दर ब्रांच दे रही होती है. ठीक है, और जो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज होती हैं वो कहाँ से डिराइव्ड होती हैं? स्प्लेनिक आर्टरी से. ठीक है, ये आपने जो सारा सिलिक प्लेक्सिस है ना, इसका आई थिंक फर्स्ट एड के अंदर भी बना हुआ है, जीआईटी के अंदर और रफ़ी के अंदर भी बना हुआ है. इसमें से भी एक एमसीक्यू लाजमी आता है कि कौन सी आर्टरी कहाँ से किस आर्टरी से आ रही है और आगे उसने फर्दर कौन कौन सी आर्टीरियल सप्लाई करना होता है. ठीक है, अल्फा फिटोप्रोटीन एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेलिग्नेंसी. तो बच्चों में कौन सी करवाती है? हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा. आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मैसिव ब्लड लॉस पेशेंट अंडरगोज शॉक. बीपी उसका कितना है? 85/40. व्हाट विल एक्टिवेट नाउ. अब क्या चीज़ एक्टिवेट हो जाती है जब भी हमने इसका मीन आर्टीरियल प्रेशर कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो इसका मीन आर्टीरियल प्रेशर आ जाएगा 55. जब भी हमारे पास मीन आर्टीरियल प्रेशर 60 से बिलो होता है तो कौन सा रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है? CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स. ठीक है, ये आपने सारे एक दफ़ा रीड कर लेने जो इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखे हुए हैं ना. ठीक है, हाईएस्ट कैलोरी वैल्यू इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग. किसकी होती है? फैट्स की होती है. ठीक है, कार्ब्स और प्रोटीन हमें 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं, फैट्स 9 और अल्कोहल 7. ए पेशेंट इंजर्ड इन RTA ब्लीडिंग फ्रॉम द साइट ऑफ इंजरी विद BP 90/70. हार्ट रेट उसका इंक्रीज हो गया है 100 से 120. हमने कल भी किया था, अगर आप बैठे हुए हैं, अगर आप खड़े हो जाएं तो वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, 666, which one of the following product by action of lipoxygenase on arachidonic acid is a potent chemotactic factor. कौन सा होता है? LTB4 is greater than C5A. A chronic smoker and alcoholic having ulcer on the lower lip. लोअर लिप के ऊपर कौन सा कार्सिनोमा होता है? स्क्वेमस सेल. और अपर लिप्स पे कौन सा होता है? बेसल सेल. कॉप्लिक स्पॉट्स आर डायग्नोस्टिक फॉर. ये क्या चीज़ करवाते हैं? मीजल्स कोर्स करवाते हैं. मीजल्स के अंदर ये कॉप्लिक स्पॉट्स पॉजिटिव आते हैं. 669, 70-year लेडी विद विजाइनल ब्लीडिंग ऑन एग्जामिनेशन टाइप ऑफ प्री कैंसरस चेंज, हाइएस्ट चांस ऑफ डेवलपिंग एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एंड विल बी इंडिकेशन ऑफ हिस्टेक्टमी. तो हिस्टेक्टमी अब किस कंडीशन में करवाते हैं? अगर कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया हो जाए एटीपिया के साथ. Squamous cell carcinoma diagnosed in a person who came from Dubai and presented with painless hematuria. Likely organism associated with disease is. तो squamous cell carcinoma है. अब वो तो इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो हमने बात की थी कि वो कार्सिनोमा कॉज करवा सकता है? शिस्टोसोमा हिमाटोबियम. लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक इज बाय. किस में ड्रेन करती हैं? सिलिक लिम्फ नोड्स में. ए पेशेंट विद रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में प्रेजेंट विद हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज रेनिन सिक्रेशन. ठीक है, उसका रेनिन इंक्रीज हो गया है. तो रेनिन उन्होंने सेल्स बेसिकली पूछे कि रेनिन सिक्रेट कहाँ से होता है? जेजी सेल से. हार्मोन प्रोफाइल ऑफ ए पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन क्या चीज़ शो करती है? उसमें एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाता है, FSH और LH इंक्रीज हो जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाउंड अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पाई जाती है? सिलिका. इस तरह आपने देखा होगा कि जो अंडरमाइंड वर्कर्स होते हैं उसमें सिलिकोसिस डेवलप हो जाता है. ASO टाइटर आर डायग्नोस्टिक फॉर रूमेटिक फीवर के अंदर करवाते हैं. लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ एक्सटर्नल नोज इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिम्फ नोड्स. तो वो कौन सी होती हैं? सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में ही ड्रेन कर रहे होते हैं. ठीक है, एक्सटर्नल और एंटीरियर नेजल कैविटी ड्रेन करती है सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में, और जो पोस्टीरियर नेजल कैविटी है वो किस में ड्रेन करती है? रेट्रोफ्रेंजियल और जुगुलो डाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स में. इमीडिएट रिस्पॉन्स इन शॉक प्रोवाइडेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? बैरो रिसेप्टर्स होते हैं.
A youngster presented in emergency in unconscious state with bilateral pinpointed pupil due to toxicity of which one of the following. तो अगर एक पेशेंट है, यंग पेशेंट है, उसमें इमरजेंसी अनकॉन्शियस स्टेट में चला गया, बायलैटरल पिन पॉइंटेड पिपल है, तो किस चीज़ की टॉक्सिसिटी हो रही है? मॉर्फिन की. एक मिनट. इस वन ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो ये मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी की वजह से वो अनकॉन्शियस स्टेट में चला गया है. उसने पॉइजनिंग मतलब बहुत ज़्यादा इनटेक कर लिया ना उस चीज़ का, टैबलेट्स का. ठीक है. नायसिन डेफिशिएंसी कॉजेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट. वो क्या चीज़ कॉज करवाती है? CNS डिफेक्ट कॉज करवाती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स. ठीक है, तो CA सर्विक्स का कौन सा वायरस होता है? ह्यूमन पेपिलोमा 16 एंड 18. बेनेडिक्ट टेस्ट एग्जाम में भी आया था MCQs. बेनेडिक्ट टेस्ट इज क्या चीज़ कॉज करवाती है? यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग सब्सटेंस ऑफ द यूरिन. A person went to Thailand and on return presented with diarrhea, which is watery and large in amount in stool sample donut shaped cyst. तो ये किसके अंदर आता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये HIV का सारा स्नैरियो है. ठीक है, HIV के पेशेंट में या एड्स के पेशेंट में डायरिया कौन कॉज करवाते हैं? जो डोनेट शेप होता है, क्रिप्टोस्पोरिडियासिस. ठीक है. अच्छा, एग्जाम के अंदर वैसे ही आया हुआ था. अगर आप देखें SK19 वॉल्यूम 2, ठीक है, तो उसमें जो है ना, ये इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ था. ठीक है, स्नैरियो सेम यही था और ऑप्शन उसमें आई थिंक कोई बहुत अजीब सा कोई ऑप्शन था. तो वो आपने जो SK19 वॉल्यूम 2 है ना, उसमें आपने देख लेना है कि ये डिफरेंट ऑप्शंस भी आ रहे हैं. ठीक है, स्नैरियो सेम होता है, अक्सर वो ऑप्शन चेंज कर देता है. 683 नॉन स्मोकर presented with dysphagia to solid food. The dysphagia is due to following mechanism. किसकी वजह से होता है dysphagia? क्या करवा रहा है आगे जाके? पेरिस्टालसिस को डिक्रीज करवा देता है. ठीक है. फॉर इवेल्युएशन ऑफ malignancy बेस्ट टेस्ट आप क्या करवाते हैं? स्टेजिंग करवा लेते हैं. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट? सीलिक प्लेक्सिस और स्पीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी, इन दोनों के दरमियान क्या पड़ा होता है? पेंक्रियाज पड़ा होता है. ठीक है. एनॉइन गैप का फॉर्मूला किसी को याद है? क्या होता है? सोडियम माइनस. अच्छा, ये जो छोटे छोटे फार्मूला है ना, ये आपने अच्छे से या तो आप किसी एक शॉर्ट सी डायरी या पेज बना लें, उस पर आप लिख लें. ठीक है, ये छोटे छोटे ऐसे फार्मूले एग्जाम में आ जाते हैं, आपका एक MCQ सॉल्व हो जाता है इससे ईजीली. ठीक है, तो एनाइन गैप का फार्मूला क्या है? सोडियम. अच्छा, ये आपको ना प्लस माइनस वहाँ जाके मिक्स हो जाता है सारा जब आप पेपर में बैठे होते हैं. ठीक है, तो आपने ना इसका लिख के पेपर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें कि कहाँ पॉजिटिव आना है, कहाँ नेगेटिव आना है. ये आपको इतना तो याद रहता है कि सोडियम है, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट है. ठीक है, लेकिन आप फिर भी काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो इसमें एनाइन गैप अभी सिंपली भी आया हुआ था. ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स इस सिंपल फार्मूला में ना वहाँ जाके थोड़ी कन्फ्यूजन नॉर्मल हो जाती है. ठीक है, तो आपने सिंपल चीज़ों की भी प्रैक्टिस करनी है, फिर वो आपकी ज़्यादा उन पर ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी. ठीक है, हमें लगता है कि ये बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, हमें आता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा एक नर्वस या एंजाइटी की कंडीशन में होते हैं ना, तो वो सिंपल चीज़ें फिर आप कंफ्यूज कर जाते हैं. ठीक है. स्लाइवरी सिक्रेशन इज बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, स्लाइवरी सिक्रेशन कौन सी नर्व कैरी कर रही होती है? फेशियल नर्व. एपेक्स ऑफ द हार्ट इज सप्लाइड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो इसे कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है? एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर आर्टरी. प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग. तो प्लाज्मा प्रोटीन को सिंथेसाइज कहाँ से होती है? लिवर से. हाइपरकैलेमिया लीड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो ये क्या कॉज करवाते हैं? फ्लैसिडिटी. एक्सटर्नल ईयर डेराइव फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो ये फ्रेंजियल आर्च ऑपरेटस वाला भी आपने टेबल अच्छे से कर लेना है. एक्सटर्नल ईयर किससे ड्राइव होता है? फर्स्ट एंड सेकंड फ्रेंजियल आर्च से. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किस चीज़ को कैलकुलेट करती है? इसमें मीन, मोड और मीडियन इक्वल होते हैं. ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद नर्व डेफनेस इन 1 ईयर, ये हमने कल भी किया था. ठीक है, अगर 1 ईयर का पूरा. अच्छा, इसमें बताएं कि हमने कौन सी नर्व की थी डेफनेस? कौन सी थी? सेंसरी न्यूरल या कंडक्टिव डेफनेस? सेंसरी न्यूरल. ठीक है, क्योंकि उसकी नर्व की डेफनेस आ रही है ना, तो ये तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा. स्पर्म लाइफ का स्पैन कितना होता है? ठीक है, वैसे तो वो नॉर्मली होता है 72 आवर्स पे, लेकिन वो एक्टिव अगर आप सोचो, या अपने छोटी छोटी स्टेटमेंट को ना देखना है, एक एक वर्ड से चेंज आ रहा होता है. अगर वो पूछे कि एक्टिव कितने अरसे तक रहता है, तो ऑलमोस्ट 2 डेज तक, 48 आवर्स. अगर उसने पूछना है कि लाइफ स्पैन उसका कितना है, तो आपने 72 या 64 ये वाले ऑप्शन चूज़ कर लेने हैं. ठीक है.
ड्यू टू एम्फाइसीमा चेंज अकर इन द लंग्स, तो लंग्स के अंदर क्या आता है, इलास्टिक रिक्वायर्ड टेंडेंसी इंक्रीज डिक्रीज हो जाती है, और कंप्लाइंस इंक्रीज हो रही थी या डिक्रीज हो रही थी, कंप्लाइंस इंक्रीज हो रही थी। एंजाइना लाइक सिम्टम अकर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो एंजाइना के अंदर क्या आता है, एओटिक स्टेनोसिस के अंदर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, एंजाइना आ रहा होता है, डिज्नी आ रहा होता है, सिंकनोप आ रहा होता है, ठीक है, सैड निमोनिक है, एसएडी। एवस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर इज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ विच आर्टरी, हमने कर लिया, मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ग्राम पॉजिटिव शॉक का बैक्टीरिया कौन सा होता है, टॉक्सिन कौन सा होता है, एंडोटॉक्सिन। मेलाटोनिन रेगुलेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो किस चीज़ को, मेलाटोनिन बेसिकली पिगमेंटेशन कॉज करवाता है। ऑरल लीजन के एग्जांपल क्या है, क्रॉनिक अल्सर्स। एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम इज एट रिस्क ऑफ डिवेलप विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉनिक प्रॉब्लम, तो उसमें क्या आ जाता है, ओस्टियोपीनिया डिवेलप हो जाता है, बोन का मैस या डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ट्रांसलेशनल एपिथेलियम में इसमें बेसिकली डोम शेप सेल्स होते हैं, ठीक है। टिपिकल फीचर ऑफ ए वायरस इस क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिव होता है वायरस। ग्रोथ हार्मोन नीड विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ग्रोथ हार्मोन को लिए क्या चाहिए होता है, इंसुलिन या इंसुलिन लाइक पेप्टाइड। ए मैन प्रेजेंटेड विद स्ट्रोक एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी इज अफेक्टेड, तो कौन सा एरिया ऑफ द ब्रेन डैमेज होगा, सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया। वट इज़ द प्रेजेंट बिटवीन द गैप जंक्शंस के दरमियान कौन सी चीज़ उसे कनेक्ट कर रही है, कोनेक्सिन, ये एक प्रोटीन होती है। पेशेंट केम फॉर वेट मॉनिटरिंग बेस्ट एडवाइस फॉर इट, तो सबसे पहले हम पेशेंट को कहेंगे कि आपने पर्सनली अपने आप को मॉनिटर करना है, ठीक है, अपना रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, ठीक है, अपना थोड़ी जो फूड इनटेक वाली हैबिट्स होती हैं उसके ऊपर आपने कंट्रोल करना होता है, चेक करना होता है, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी टेकिंग वाइटामिन फॉर सम हेल्थ प्रॉब्लम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्क प्रेजेंट, ठीक है, तो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, ठीक है, अगर वो वाइटामिन ले रही है तो उसमें कौन सी अबनॉर्मेलिटी हो सकती है, फिटल एबनॉर्मेलिटी कोई उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि जो वाइटामिन है उसकी टॉक्सिसिटी भी तो हो जाती है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा वाइटामिन ले रहे हैं उसकी, ठीक है, तो उसकी डोज पे डिपेंड कर रहा होता है। नॉर्मल A/A रेशियो कितनी होती है, नॉर्मली 0.8 होती है, ठीक है। 32 ईयर ओल्ड लेडी फीमेल है, पेशेंट है, प्रेजेंट करी है वेरी लो लेवल ऑफ कोर्टिसोल। व्हाट क्वेश्चन यू विल आस्क टू नो द कॉज ऑफ लो कोर्टिसोल, ठीक है, तो आप उससे पूछेंगे कि आप कोई एक्सोजीनस स्टीरॉइड्स तो नहीं ले रहे, क्योंकि जो एक्सोजीनस स्टीरॉइड्स होते हैं वो एड्रिनल ग्लैंड की सप्रेशन कॉज करवा देते हैं, ठीक है, उसकी वजह से बॉडी के अंदर कम कोर्टिसोल बनना शुरू हो जाता है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन 922 किसके अंदर होती है, CML के अंदर होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्लो अडेप्टिव रिसेप्टर्स, कौन से होते हैं, रूफिनी रिसेप्टर्स होते हैं। और फिंगर टिप्स के ऊपर कौन से अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं, हमने कल MCQs किया था, फ्री नर्व एंडिंग्स। फोर्सफुल स्ट्रेचिंग ऑफ मसल इज डन, कौन सा मसल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट मसल टीयर, कौन सी चीज़ें जो मसल को इनहिबिट करेगी ना, अगर मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स उठाई हुई या मैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन कर रही हूँ तो गोल्जी टेंडन बेसिकली उस मेरे रिफ्लेक्स को, मसल स्ट्रेच को इनहिबिट करेगी कि अब इससे ज़्यादा हम फ्लेक्शन नहीं या फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो मसल टीयर प्रोड्यूस कर सकता है ना। हाइपोक्रेटिक ऑथ डिस्क्राइब क्लियरली विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रेजेंट कर रही होती है कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच नहीं करना। व्हेन बोथ अलील आर फुली एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगोट, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस। पेशेंट विथ CCl फॉर पॉइजनिंग डाइट वाया विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो उसमें फ्री रेडिकल फॉर्मेशंस बन जाती हैं, ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल्स किस चीज़ को डैमेज करती हैं, हेपेटिक, लिवर और किडनी को डैमेज कर देती हैं। वाइल ईटिंग ड्राई फ्रूट स्लाइवा क्या हो जाता है, सीरस हो जाता है। पेशेंट प्रेजेंट आफ्टर RTA विद रेडनेस, इन्फ्लेमेशन ऑन आर्म एंड फील पेन ऑन मूवमेंट, तो ये किस तरह की रेडनेस और ये इन्फ्लेमेशन और पेन है, तो ये सारे साइन क्रोनिक इन्फेक्शन के हैं या एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साइंस हैं, एक्यूट है ना, एक्यूट में वो रेडनेस होगी, पेन होगा पेशेंट को, अरिथ्रीमा होता है, हमने इसका एक थर्ड ईयर के अंदर एक निमोनिक भी किया था इसका, ठीक है। 5 kg इन्फेंट विल हैव ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, तो उसमें, ठीक है
ठीक है। तो उसमें नॉर्मली ब्लड वॉल्यूम कितना है, ऑलमोस्ट 80 टू 85 ml पर केजी होता है। ठीक है, तो 85 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 425 आ जाएगा, तो वो रेलिवेंटली इक्वल है अल्फा ऑप्शन के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लोजेज क्रेनियल सूचर्स इन एनिमल मॉडल्स? एनिमल मॉडल्स में क्रेनियल सूचर्स को क्लोज कौन करता है? ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा, चार्ली ऑप्शन। सडन राइज इन पल्स प्रेशर ड्यू टू, तो अभी हमने क्या बात की थी, पल्स प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो पल्स प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। फीमेल डेवलप कफ आफ्टर डिक्रीज टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट रिसेप्टर एक्टिवेट, तो अब कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे? इरिटेंट रिसेप्टर्स। द अमाउंट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम बॉडी डिपेंड, किस चीज़ पे डिपेंड करती है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। टू कैलकुलेट प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, सोडियम कंसंट्रेशन इज मल्टीप्लाइड विद 2 बिकॉज, टू कैलकुलेट द प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी सोडियम कंसंट्रेशन इज, ठीक है, इज बिकॉज ऑफ एनाइंस। ठीक है, तो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को हमने मेजर करने के लिए सोडियम को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ एनाइंस। प्लाज्मा प्रोटीन ऑफ द ड्रग किसके साथ रिलेटेड होती है? ये इनएक्टिवेटेड होती हैं और ये लीवर में जाके एक्टिवेट हो जाती हैं। टोटल पायरेंटल न्यूट्रिशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, तो ये आपने इसका सीक्वेंस वाइज याद रखना है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मिलाइटस के अंदर एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, लीवर डिजीज़ में और डायबिटीज़ मिलाइटस में। मेग्जॉइड डिजनरेशन किसके साथ एसोसिएटेड होती है? माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स के साथ। किडनी एक्टिवेट्स, किस चीज़ को एक्टिवेट करती है? विटामिन डी यहाँ एक्टिवेशन हो रहा होता है। ठीक है, कोलिकाल्सिफेरोल, ये भी एग्जाम में आया था। देयर वाज हेमी सेक्शन ऑफ द वर्टिब्री, व्हाट विल बी द लॉस्ट कॉन्ट्रालैटरल। ठीक है, अगर हेमी सेक्शन हो जाए वर्टिब्री का तो कॉन्ट्रालैटरल साइड पे क्या चीज़ लॉस हो जाएगी? पेन और टेम्परेचर के जो सेंसेशन है ना वो लॉस हो जाती हैं। ठीक है, वार्मथ के। ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स का फंक्शन क्या होता है? ये किल करते हैं कैंसर सेल्स को, एंटी ट्यूमर सेल्स को, और इसका मार्कर कौन सा होता है? CD56। मैन वर्किंग इन शिप क्राफ्ट डेवलप विच कार्सिनोमा, कौन सा कार्सिनोमा करी होती है? ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। ए वर्कर इज बीइंग वर्किंग नियर ए निकल मेटल शॉप, तो कौन सा कार्सिनोमा होने के चांसेस ज़्यादा होंगे? लंग्स कार्सिनोमा ग्रेटर देन नेजल कार्सिनोमा। तब ठीक है, अच्छा, लंग कार्सिनोमा के 4 रिस्पेक्टर्स होते हैं, निकल, क्रोमियम, बेरिलियम और सिलिका। द बेस्ट डायग्नोस्टिक लैब टेस्ट फॉर द इन्फेक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हिमोलिटिकस इज, तो उसमें हम क्या करवाते हैं? ब्लड कल्चर करवाते हैं। लेकिन अगर थ्रोट कल्चर होगा तो आपने उसको चूज़ करना है। थ्रोट कल्चर इज ग्रेटर देन ब्लड कल्चर। फीचर ऑफ प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी क्या होती है? हाइपरकैलीमिया। सबड्यूरल हेमाटोमा किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है? सुपीरियर सेरेब्रल वेन्स को। हेपेटाइटिस हमने कर लिया कि हेपेटाइटिस साइटोमेगालोवायरस होते हैं, देन हेपेटाइटिस बी, देन सी। ओल्ड लेडी कांट ग्रिप कप ऑफ टी, अगर आप एक चाय का कप या कोई भी इस तरह की ऑपोजिशन वाली मूवमेंट्स नहीं कर सकते तो कौन से नर्व में लीजन आ रहा है, डैमेज आता है? मीडियन नर्व। इन ओवेरियन कार्सिनोमा स्टेजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिम्फ नोड्स अफेक्टेड फर्स्ट, सबसे पहले किसको स्प्रेड करता है? पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स में। न्यूरल थ्रोम्बोसिस ओरिजिनेट कहाँ पे होता है? हार्ट से, हार्ट के अंदर ओरिजिनेट होते हैं ये। ठीक है, और हार्ट के अंदर भी हमने कहाँ किया था इसका? राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल या एट्रियम? लेफ्ट वेंट्रिकल। ग्रोथ हार्मोन नीड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू इंक्रीज मैक्सिमम इफेक्ट, अभी हमने किया। इंसुलिन चाहिए होता है। कौन सा बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं होती? माइकोप्लाज्मा एंड यूरिया प्लाज्मा। पैसिव इम्यूनाइजेशन इज अचीव बाय IV इम्यूनोग्लोबुलिन दे देते हैं पेशेंट को। सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस्ड बाय किस सेल से? टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट हैज़ वीकनेस एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन सिंस 2 वीक्स। व्हाट इज़ द पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ पोलीयूरिया, तो पोलीयूरिया क्या है? बेसिकली हमने वही वाला मैकेनिज्म किया हुआ है इसका। ठीक है, स्प्ले मैकेनिज्म। ठीक है, कि ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल से डिक्रीज हो गई है, तो अब बहुत ज़्यादा यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो गई और यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है। लीस्ट लाइकली रिएक्शन व्हेन बी पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज्ड विद विच वन ऑफ दीज, अगर बी पॉजिटिव हम किस ब्लड वाले को देंगे तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन से होते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट AB। ठीक है, तो इसे आप A भी दे सकते हैं, B भी दे सकते हैं, O भी दे सकते हैं, तो लीस्ट लाइकली रिएक्शंस होंगे। ठीक है, बॉडी कैविटी
डिवाइडेड इनटू वेंट्रल एंड डोर्सल। तो वेंट्रल पार्ट से क्या क्या बनता है, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी, और डोर्सल कैविटी में क्या आ जाएगा, क्रेनियल एंड स्पाइनल कैविटी। ए पेशेंट ऑफ एस्थमा हैविंग एबीजीज पीएच की वैल्यू डिक्रीज है 7.23, बाइकार्बोनेट रेज्ड है स्लाइटली 26, कार्बन डाइऑक्साइड भी रेज्ड है, हाइपर कैप्निया। तो कौन सा एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है, पीएच कम है तो आपको पता चल गया होगा कि एसिडोसिस है, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है इसका मतलब है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। पेशेंट प्रेजेंट विद सेंट्रल चेस्ट पेन फॉर 3 आवर्स, तो कौन सा कार्डिक मार्कर रेज्ड होगा, ड्रॉप आई। ठीक है, ये 4 आवर्स के बाद रेज्ड हो जाता है। और फर्स्ट 2 आवर्स में कौन सा होता है, मायोग्लोबिन। और फर्स्ट 6 आवर्स में बेस्ट टेस्ट कौन सा होता है, ईसीजी। ईसीजी भी करवा लेंगे, ठीक है, सीकेएमबी भी करवा लेंगे। आइलियम रिमूवल विल कॉज लॉस ऑफ कौन सा विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होगा, विटामिन B12। पेशेंट प्रेजेंटेड विद सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग, पिटेकिया एंड एक्मोसिस विद कोआगुलेशन प्रोफाइल एंड सीबीसी नॉर्मल डायग्नोसिस इज। तो नॉर्मली उसे पिटीकिया वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, एक्मोसिस हो रही है, इसका मतलब उसे वस्कुलाइटिस डेवलप हो गया है। आल्डोस्टेरोन का एक्शन बेसिकली क्या होता है, ये डिस्प्लेस कर देते हैं सोडियम को फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू सेल मेम्ब्रेन, मतलब सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवा लेते हैं डीसीटी के लेवल पे। एक ग्रुप विद CSD एंड एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर इज कम्पेयर टू। अच्छा, जब भी एक रिस्क फैक्टर को हमने एक्सपोज्ड वर्सेस नॉन एक्सपोज्ड, इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, एक्सपोज्ड वर्सेस नॉन एक्सपोज्ड कोहॉर्ट स्टडी। ठीक है, और रिस्क फैक्टर्स डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज को क्या कहते हैं, वो केस कंट्रोल आ जाएगी। ठीक है, और डिजीज वर्सेस रिस्क फैक्टर, डिजीज और वो क्रॉस सेक्शनल आ जाएगी। ठीक है, मॉडरेट हेमरेज कैन बी डायग्नोस्ड क्लिनिकली। आप क्या देखेंगे, पेशेंट को थोड़ी सी डिजीनेस हो रही होगी। टाइप ऑफ नेक्रोसिस सीन इन ओमेंटम में कौन सी होती है, फैट नेक्रोसिस। पेशेंट प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल ब्लोटिंग, डायरिया, रिपोर्ट्स टू बिलीरुबिन रेज्ड है 16, ALP 365, अल्फा फीटोप्रोटीन नॉर्मल है, लेकिन जो CAA का जो लेवल है ये रेज्ड है, इसका मतलब है कि कोलोन का कार्सिनोमा सस्पेक्टेड है। Why cimetidine and sucralfate should be administered at about 2 hours of gap in patient of peptic ulcer। इसमें हम क्यों देते हैं, क्योंकि जो सुक्रलफेट है वो सिमेटाडीन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। ठीक है, और सिमेटाडीन भी सुक्रलफेट की मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करवाते हैं, इसलिए हम 2 आवर्स के गैप पे ये देते हैं। ब्रेस्ट कार्सिनोमा आफ्टर कीमोथेरेपी रिग्रेस बाय, किसके थ्रू रिग्रेस करती है, अपोप्टोसिस। 758 patient in RTA has fracture of neck of fibula presented with inability to do eversion and dorsiflexion of the foot। कौन सी नर्व अब इसकी लॉस होती है जो इवर्जन और डोर्सिफ्लेक्शन करवाती है, CPN, कॉमन पेरोनियल नर्व। लो लेवल ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज सीन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो लो लेवल ऑफ कॉम्प्लीमेंट किस में होता है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस में या SLE के अंदर। ठीक है, और अगर C5 to C9 की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसमें नाइजेरिया का इन्फेक्शन रेज्ड हो जाता है रिस्क। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें आपने निमोनिक क्या याद रखना है, नोरेपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन, देन एपिनेफ्रिन। पेशेंट मेट एन एक्सीडेंट वाज ब्रॉट टू एमरजेंसी डिपार्टमेंट, BP उसका लो है 80/40, टेकिकार्डिया, लो यूरिनरी आउटपुट आफ्टर कैथेटराइजेशन, रेनिन वाज इंक्रीज ड्यू टू। जब भी एक्सीडेंट के बाद पेशेंट शॉक में चला जाता है ना तो उसका आर्टीरियल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। 762 पेशेंट विद हेयर ऑन एंड अपीयरेंस ऑन एक्सरे, व्हाट इज द नेक्स्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस। अब आप क्या करवाएंगे, थैलेसीमिया का सारा सिनेरियो है ना, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस, तो आप क्या करवाएंगे, HB इलेक्ट्रोफ्रोसिस। 14 years old boy came from बलोचिस्तान with painful legs, ulcers on the leg, mild jaundice है। तो प्रोबेबल कॉज बेसिकली क्या है, ये फुट एंड लेग सिंड्रोम डेवलप हो गई है ना उसमें, तो सिकल सेल अनीमिया के अंदर ये होता है। व्हाट डिटरमिन प्री लोड ऑफ द हार्ट, तो प्री लोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से। इंटरमीडिएट पेन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेफर्ड, तो रेफर्ड पेन कौन सा होता है इसका, अम्बलाइकस का लेवल होता है। हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस के अंदर कौन सी प्रोटीन में डिफेक्ट आता है, स्पेक्ट्रिन के अंदर। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग का क्या मतलब है कि जो ड्रग है वो एक्टिवली सर्कुलेशन के अंदर पहुंच चुकी है। ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो रीच कर गई है।
इनके कार्डियम रिदम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हमने कल भी किया था, मैक्सिमम कब होती है? अर्ली मॉर्निंग में। गुड पास्टर सिंड्रोम में कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी होती है? टाइप 2। और ए प्लास्टिक अनीमिया में कौन सी होती है? टाइप 3। डायबिटिक पेशेंट हैविंग अडीमा विच टेस्ट शुड बी परफॉर्म, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो डायबिटिक में हम क्या करवाते हैं? यूरिन फॉर प्रोटीन। ए पेशेंट ऑफ जॉन्डस विथ टोटल बिलीरुबिन 10 डायरेक्ट 9। अच्छा, जब भी डायरेक्ट बिलीरुबिन रेज्ड होती है तो वो कॉन्जुकेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया होता है या अनकॉन्जुकेटेड होता है? कॉन्जुगेटेड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से बताएं कि कौन कौन सी डिजीज़ हैं जिसमें अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया में होती हैं? अल्फा और बीटा। क्रिगलर निगार्ड और गिलबर्ट सिंड्रोम अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इसमें होता है, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कौन सा आ जाता है? कोलिडोकोलिथियासिस। ए यंग गर्ल विद बायलैटरल ओवेरियन मास कंसिस्ट ऑफ हेयर एंड टीथ। तो मल्टीपल सेल्स किसके अंदर होते हैं? टेराटोमा के अंदर, ठीक है। और इसमें मेच्योर स्टेम सेल्स भी होते हैं। बिफोर वोलेंट्री मूवमेंट्स द इमेज इज फॉर्म्ड, किस एरिया के अंदर बन रही होती है? प्री मोटर एरिया। पेशेंट फॉल ऑन द स्टैंडिंग विद आइज क्लोज्ड, लीजन किस एरिया के अंदर होता है? डीसीएमएल ट्रैक। और अगर आंखें खोल के वो गिरा देन सेरिबेलम के अंदर लीजन आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिवर्सल ऑफ वॉरफेयर इन टॉक्सिसिटी? इमीडिएटली आप उसे क्या देते हैं? एफएफपी। और काफ़ी लॉन्ग टर्म में क्या देंगे? विटामिन के। RH negative mother delivered a baby at 34 weeks with anemia pallor. Baby died 6 hours after transfusion. ऑटोप्सी फाइंडिंग में क्या आएगा? उसमें बेसल गैंग्लिया की स्टेनिंग होगी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज बिहाइंड द ओवेरियन फोसा? कौन सा होता है? यूरेटर होता है। यूरेटर के भी पीछे इंटरनल आइलिक आर्टरीज होती हैं। डिफरेंस बिटवीन एपिफिसिस ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स कितना आता है? 3 ईयर्स का डिफरेंस आता है। न्यूरोट्रांसमीटर मूड का कौन सा होता है? सीरोटोनिन। और इमोशंस के साथ कौन सा एसोसिएटेड होता है? डोपामीन। इन सेल साइकिल G2 फेज किसके दरमियान आता है? S और M के दरमियान। विच मूवमेंट अकर एट एटलेंटो एक्सियल ज्वाइंट? आप रोटेशन करवाते हैं ना, येस और नो की मूवमेंट, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट विद पेन इन, हाँ नो की मूवमेंट आएगी, ठीक है। यस में तो फ्लेक्शन होगी, नो की मूवमेंट आ जाएगी रोटेशन में। पेशेंट प्रेजेंट विद पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन पोस्टीरियर थोरेसिक वाल्व एंड राइट शोल्डर आफ्टर फैटी मील। तो वो कौन सी पेन है? गॉल ब्लैडर की पेन है। व्हाट चेंजेस विल बी सीन फर्स्ट इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस में, ठीक है। तो स्ट्रेस में सबसे पहले क्या चीज़ रिलीज हो जाएगी? CRF इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में ना होता तो आप ACTH को चूज़ कर सकते थे, ACTH ना होता तो आप कोर्टिसोल को चूज़ कर सकते थे। Patient having retrosternal chest pain, nausea, GERD, velvety esophagus and columnar epithelium, it will increase the chances of, किस चीज़ के chances increase हो जाएंगे? Barrett esophagus के। Immunity actively work in presence of किस हार्मोन में? थायरोक्सिन। A girl with swollen tender knee, history of excessive bleeding after tooth extraction, इसका डायग्नोसिस बताएं क्या होगा? What is the suitable test for diagnosis the cause of bleeding, ठीक है। तो इसमें हीमोफीलिया के अंदर लेकिन तो APTT करवाते हैं ना। अच्छा, जो हीमोफीलिया होता है ना, एक्सप्लेनेशन में वो बता रहे हैं कि वो लड़कियों के अंदर बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो हाउएवर वन विल ठीक है। तो इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग अब उन्होंने जेंडर्स का गर्ल्स दे दिया ना, तो मोस्ट लाइकली इसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसका आंसर वॉन विलीब्रेंड डिजीज़ के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, ठीक है। तो वॉन विलीब्रेंड डिजीज़ में आप कौन से टेस्ट करवाते हैं? ब्लीडिंग टाइम पहले चेक करवाएंगे, ठीक है। विटामिन नीडेड फॉर, हाँ जी दोनों करवाते हैं वैसे तो, ब्लीडिंग टाइम और APTT उसमें। विटामिन नीडेड फॉर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में आप कैसे करवाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आपको थायमिन चाहिए होता है, प्रोटीन के लिए राइबोफ्लेविन और लिपिड्स के लिए बायोटिन। व्हाट विल हैपन ड्यू टू अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, ठीक है, एग्जैजुरेटेड रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं। व्हाट इज़ द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ हीमोफीलिया ए? तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अच्छा, ये आपने ना इसकी सारी जो है ना टाइप्स के ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन सी होती है, रिसेसिव, इन सब के एग्जांपल आप एक जगह नोट डाउन कर लें। आई थिंक बायोकेम में दी हुई हैं AA के जो पल्स पॉइंट है, ठीक है। तो आपने अच्छे से रिवाइज करनी है। वेसोप्रेसिन सिक्रीशन इज इंक्रीज्ड बाय, ठीक है,
वेजोप्रेसिन जो है ये किस चीज़ को इंक्रीज करवा देता है, ये राइट डिक्रीज प्रेशर इन द राइट एट्रियम। अगर वेजोप्रेसिन हमारे पास बेसिकली एपिनेफ्रिन या नोर एपिनेफ्रिन या कैटिकोलामीन्स होते हैं ना, ठीक है, तो ये बेसिकली राइट एट्रियम का प्रेशर डिक्रीज करवा देते हैं, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन कैन नॉट क्रॉस बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्यों? क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होती है। एंड ECG ऑफ ए पेशेंट विद इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस शो यू वेव, इन्वर्टेड टी वेव, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल। ECG के अंदर यू वेव और इन्वर्टेड टी वेव के अंदर कब कब आती हैं? हाइपरकैलिमिया को शो करती हैं। 793 ट्यूमर सप्रेसर जीन। हाँ, वैसे आप लोग ठीक कह रहे हैं, जो यू वेव और इन्वर्टेड टी वेव्स होती है ना, वो हाइपोकैलिमिया को शो करती हैं, ठीक है, और टॉल टी वेव्स सॉरी हाइपरकैलिमिया को शो करती हैं, ठीक है, वो मैंने थोड़ा ऑपोजिट बोल दिया है, ठीक है। टॉल टी वेव्स होंगी तो वो हाइपरकैलिमिया को शो करेंगी, और इन्वर्टेड टी वेव्स और यू वेव्स किस चीज़ को शो करती हैं? हाइपोकैलिमिया को, ठीक है। 793 ट्यूमर सप्रेसर जीन इन्वॉल्व्ड इन रीनल एंड गोनेडल एजेनेसिस कौन सी होती हैं? WT1। A boy of 20 years splenectomy done came to ER with fever, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म उसका कौन सा निमोनिक आपने किया था? शिन निमोनिक, ठीक है, तो S से क्या आएगा? स्टेप निमोनिक, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ असाइटिस इन पेशेंट ऑफ क्रॉनिक HCV, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी के पेशेंट में जो असाइटिस डेवलप होती है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। फंक्शन ऑफ नोज एट एल्वुलर लेवल पे क्या करवाती है? ह्यूमिडिफिकेशन एंड एयर कंडीशनिंग। A patient presented with jaw claudication and chronic headache and visual disturbance on examination. Temporal artery अगर फिल्म आती है तो ये giant cell arteritis का diagnosis है। In metaplasia, if chromosome divide transversely rather than longitudinally, what will happen? तो क्या चीज़ होगी? आइसोक्रोम, मतलब वो सेम साइज के सारे क्रोमोसोम होंगे ना, उसे कहते हैं आइसोक्रोमोसोम्स। पेशेंट इज अनेबल टू स्क्रैच द बैक, कौन सा मसल डैमेज हो गया? लैटिस्मस डोर्साई। ASO टाइटर हम किस डिजीज में करवाते हैं? रूमेटिक फीवर के अंदर, ठीक है। यहाँ तक MCQ सबको क्लियर है? रिवाइज कर लें, ठीक है। मैन्यूब्रोस्टर्नल ज्वाइंट कौन सी टाइप है? प्राइमरी, सेकेंडरी, सिम्फोसिस, सिंडेस्मोसिस, बॉल एंड सॉकेट? सेकेंडरी। Which one of the following 5-HT antagonists used in patient with diarrhea? डायरिया में हम कौन से यूज़ करते हैं? एलोसेट्रॉन, डाइफेनॉक्सिलेट, ओमिप्राजोल। Most common opportunistic infection in the patient with HIV: cytomegalovirus, candida, HSV, hemophilus. Catecholamine causes which one of the following? Vasoconstriction, vasodilation, decreased resistance, meiosis. Highest caloric value of which one of the following? Carbs, proteins, fats, alcohol, water. Which one of the following arches over the root of left lung? Azygous vein, arch of aorta, phrenic nerve. Coplic spots are diagnostic for which one of the following? Malaria, mumps, measles, dengue, typhoid. नॉर्मल A/A रेशियो कितनी होती है? 0.1, 6.5, 0.8. Apex of the heart is supplied by which one of the following? Left circumflex, coronary artery, anterior interventricular artery, PDA. Hyperkalemia leads to which one of the following? Decreased action potential, tachycardia, flaccidity, spasticity. External ear कौन सी pharyngeal arch से derived होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? फर्स्ट एंड सेकंड। स्पर्म लाइफ स्पैन इज कितने आवर्स होता है? 50 आवर्स, 30, 62, 64, 40 आवर्स, 72. Avascular necrosis of femur is due to blockage in retinacular artery, medial circumflex artery, obturator artery, lateral circumflex artery, obturator artery. ASO टाइटर किस डिजीज में करवाते हैं? रूमेटिक फीवर, टाइप 1 डायबिटीज, राइटर डिसऑर्डर, मल्टीपल माइलोमा. Philadelphia chromosome translocation 922 is present in which one of the following? Forceful stretching of muscle is done which one of the following prevent muscle tear? Golgi. Which one of the following close cranial suture in animal models? Interleukin 6,
ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा बीटा इंटरल्यूकिन 1. Natural killer cell function is affect cell, kill cancerous cell, activate T cells, natural kill natural body cells, activate beta cells. Ileum removal will cause loss of which vitamin? Vitamin A, C, D, vitamin B12, vitamin K. B12. गुड पास्चर सिंड्रोम में कौन से टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी आती है? इन कार्डियम रिदम ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन इज मैक्सिमम ड्यूरिंग एट नाइट, अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून, मिडनाइट. अर्ली मॉर्निंग. A young girl with bilateral ovarian mass consists of hair and teeth. Diagnosis is teratoma. Before voluntary movement, the image is formed in which area of the brain? Premotor area, cerebellum, primary motor area, sensory area. Plasma protein cannot cross basement membrane due to negative charge on the proteoglycan. Basement membrane greater size, water solubility, positive charge. Which one of the following is used for reversal of warfarin toxicity? Immediately आप क्या देते हैं? FFP. Which one of the following structure is behind the ovarian fossa? Ureter, internal iliac, external iliac, obturator. Ureter. Tumor suppressor gene involved in renal and gonadal agenesis is p53WT1. In metaplasia, if chromosome divide transversely rather than longitudinally, what will happen? Trisomy, monosomy, isochrome, heterochromosome. Patient is unable to scratch the muscle. बैक मसल्स, कौन सा मसल डैमेज? अगर वो बैक के मसल्स को स्क्रैच नहीं कर पा रहा, लैटिस्मस डोर्साई. The most common cause of ascites in patient of chronic HCV, hepatitis C virus में. Decrease colloid osmotic pressure. Function of nose at alveolar level is mucus production, absorption, filtration, humidification and air conditioning. ठीक है, चलो यहाँ तक कोई इशू, किसी MCQs में कोई कंफ्यूजन हो? चलें ठीक है, बाकी नेक्स्ट MCQs हम कल करेंगे. ठीक है, आप लोग अपनी फर्स्ट एड की अब रिवीजन, अब ऑलमोस्ट आई थिंक 1 मंथ रह गया है. ठीक है, तो फर्स्ट एड की अपनी रिवीजन करते जाएं सारे सिस्टम एक दफ़ा. फर्स्ट एड आपने अपनी टॉप प्रायोरिटी बुक रखनी है. ठीक है, SK में तो इतने ज़्यादा MCQs रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन फर्स्ट एड को आपने बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना. ठीक है, हाँ जी. अच्छा, मेजर मैं बार बार रिपीट करती हूँ. सबसे पहले आपने टॉप प्रायोरिटी के ऊपर अपना CVS रखना है, और देन CNS, GIT, एंडो, रेस्पिरेटरी, रीनल. ठीक है, ये वाले अपने मेन 6 ये वाले सिस्टम, इसकी एक एक लाइन आपको मतलब पता हो कि ये फर्स्ट एड के अंदर किस पेज में कहाँ लिखी हुई है. ठीक है, बाकी जैसे रिप्रोडक्शन हो जाते हैं, मस्कुलोस्केलेटन हो जाता है, उसके आप इंपॉर्टेंट भी कर लें तो आपका काम चल जाता है. यानी कि फिर वो आप AA से भी कर लेते हैं. AA के अपने पल्स पॉइंट अपने फिंगर टिप्स में होने चाहिए. ठीक है, जैसे अभी हमारी SK थोड़ी सी ये वाली हाफ रह गई है. ठीक है, तो हम अपने AA के पल्स पॉइंट भी फिर हम उसका वाइवा स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट एड आप अपनी अच्छे से करते जाएं. अगर CNS फर्स्ट एड से नहीं पढ़ा, आजकल आप लोगों के लेक्चर आई थिंक चल रहे हैं फर्स्ट एड के, CNS के. CNS का आपका आजकल चल नहीं रहे फर्स्ट एड से? फर्स्ट एड नहीं है, कौन सी बुक से हो रही है थ्योरी? हाँ जी, डॉक्टर बिलाल के लेक्चर्स चल रहे हैं ना, तो वो फर्स्ट एड से नहीं करवाते, अपने नोट से करवाते हैं. अच्छा, सही है. अच्छा, अगर जो CNS है ना, वैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस यही है. हाँ जी, मुझे समझ आ गया, दूसरे डॉक्टर बिलाल करवाते हैं. ठीक है, जो CNS है ना, वैसे मैंने भी वो बहुत ज़्यादा फर्स्ट एड से नहीं किया था, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर भी ना अगर आप AA से कर लेना, AA के अंदर उसकी न्यूरो एनाटमी और सारे जो 3 पोर्शंस अच्छे से, अगर आप उसके CNS वाले MCQs भी आपने ना मतलब आप लगा लें कि कोई आप एक सेपरेट वीकेंड रख लें. ठीक है, जैसे फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये मैंने आपको तीनों दिन एक एक टॉपिक जो है मैंने AA से आपने MCQs करने हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट आई थिंक उससे काफ़ी MCQs बन जाते हैं. ठीक है, तो आप 2 या 3 आवर्स में अपने CNS के MCQs करने हैं वहाँ से AA से. ठीक है, उसके पल्स पॉइंट कर लें और रफ़ी से कर लें. रफ़ी के अंदर लिखा हुआ है जो ऑलमोस्ट वो फर्स्ट एड के अंदर है, सिमिलैरिटी है, कोई इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है. हाँ जी, AA से सारे पल्स पॉइंट वही वाले हैं. फर्स्ट एड के अंदर ना कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दी हुई वैसे CNS की. ठीक है, तो अगर आप AA से और रफ़ी से भी CNS कर लेते ना, तो आपका
आई थिंक सारी चीज़ें वो कवर कर लेती है। डबल ए बहुत अच्छी बुक है CNS के लिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि किसी के माइनर्स के अंदर पहले थोड़ी डेफिशिएंसी रह गई है, तो आप अपने माइनर्स के लिए डबल ए अच्छी तरह करते जाएं, रफ़ी के टेबल्स अच्छे से करते जाएं, ठीक है। और वरना सिस्टम के लिए अपने फर्स्ट एड को आपने अपनी प्रायोरिटी बुक रखना है, ठीक है। 6 सिस्टम्स हैं। अगर आप माइक्रो, अच्छा फार्मा आपने ऐसे करनी है कि जो सारे सिस्टम्स हैं ना, उनके एंड में जो MCQs है ना, अभी रिसेंटली जो 2025 में है ना, वो सारे जो सिस्टम्स के एंड पे फार्मा दी हुई है ना, उनकी डिटेल से पूछी जाती है, ठीक है। वहाँ से कर लें। और आप 3 डेज़ लगा के ना, आप डेली या 5 डेज़ रख लें कि डेली मैंने 2 आवर्स डबल ए से 100 MCQs आई थिंक 1 घंटे में हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो आपने डेली ऐसे करें कि मैंने 2 आवर्स अपने रात को सोने से पहले जब भी आपका फ्री टाइम होता है, आपने डबल ए से करने हैं MCQs, ठीक है। 1000 MCQs हैं फार्मा के, ठीक है। 1 वीक लगा लें आप फार्मा को कि 2 आवर्स में मैंने अपने डबल ए से MCQs करने हैं और 1 आवर में डेली एक सिस्टम की फार्मा रिवाइज करनी है, जो सिस्टम के एंड पे बॉक्सेस दिए हुए हैं, ठीक है। रफ़ी के अंदर आप कर लें, लेकिन कम दी हुई है, मतलब जनरल फार्मा टाइप दी हुई है, ठीक है। सिस्टम्स वाली फार्मा मैकेनिज़्म आ रहे होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं। और जो माइक्रो है ना, आई थिंक माइक्रो के लिए रफ़ी और डबल ए एनफ होती है, ठीक है। बाकी जो SK के अंदर MCQs रिपीट होते हैं, आई थिंक माइक्रो हो जाती है। फार्मा बहुत आती है पेपर 2 के अंदर, ठीक है। तो आपने उसकी स्ट्रैटेजी भी उसके लिहाज से उसे टाइम देना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि 2 आवर्स। अच्छा बायोकेम मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स भी फर्स्ट एड से शेयर कर दिए थे, ठीक है। जैसे लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ वाला टेबल है, ठीक है। और ये जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव, इनकी सारी एग्जांपल्स आपने अच्छे से करनी है। कुछ जैसे सिंड्रोम्स आ जाती है, डाउन सिंड्रोम है और क्लाइन फिल्टर, मतलब मेन जो पैथोलॉजी आती है ना, वही वाली आती है। उसके बाद आपने क्या करना है, डबल ए से अच्छे से उसके पल्स पॉइंट कर लेना है। 400 MCQs हैं बायोकेम के, ठीक है। आई थिंक वो एक दिन के अंदर आपकी बायोकेम सारी प्रिपेयर हो सकती है। एंजाइम्स, एंजाइम्स कौन से होते हैं, मतलब जो डिजीज़ के साथ है ना, जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया, लाइसोसोमल वाले। अच्छा वो आई थिंक एक टेबल ही है सिर्फ, मतलब एक पेज के ऊपर लाइसोसोमल दी हुई है, दूसरे पे उन्होंने ग्लाइकोजन है। तो वो आई थिंक अगर आप उसे 4 से 5 दफ़ा रिपीट करेंगे, रिवाइज बार बार करते जाएंगे, तो आपको याद हो जाएगी। अच्छा पूरी मतलब मैंने किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी वैसे मैंने पर्सनली बायोकेम की हुई है फर्स्ट एड से सारी, ठीक है। लेकिन आई थिंक FCPS वगैरह के लिए आपको इतनी ज़्यादा रिक्वायर नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर मुश्किल पेपर आता है, तो जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, तो जैसे मैंने आपको ग्रुप में बता दी हैं कि यहाँ से MCQs आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो FCPS के लिए मैंने सिर्फ वो वाले इंपॉर्टेंट चीज़ें की थी और उसके बाद मैंने डबल ए से बायोकेम अच्छे से की थी, ठीक है। बायोकेम रफ़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दी हुई, ठीक है। अब इसके ऊपर डबल ए के ऊपर MC पल्स पॉइंट कर लें, देन आप 400 MCQs कर लें और फिर आप रफ़ी से कर लें और इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड के टेबल्स कर लें। आपके बायोकेम आई थिंक एक दिन के अंदर बायोकेम तैयार हो जाएगी, एक दिन में माइक्रो तैयार हो जाती है। फार्मा को चलो जैसे मैंने आपका टाइम डिवाइड कर दिया, ठीक है, उस तरह करके आप कर लें। और अनैटमी को भी आप 1 वीक रख लें, जैसे मैंने अपर लिम के सारे MCQs करने हैं और अपर लिम मैंने रफ़ी से करना है आज के दिन, ठीक है। 2-3 आवर्स आप रख लिया करें डेली। आप लोग ना अपने 2 आवर्स मतलब 200 MCQs आपके डबल ए के हो जाते हैं, ठीक है। पल्स पॉइंट अपने अच्छे करते जाएं, ठीक है। इस तरह डेली अपने ना चीज़ों को डिवाइड करके आवर्सली डिवाइड करें अपने टाइम टेबल को, ठीक है। इस तरह फिर आपकी चीज़ें होती जाएंगी। सबके मतलब डेफिशिएंसीज डिफरेंट होती हैं, जैसे रिस्पायरेटरी है, उसके MCQs डबल ए की जो फिजियोलॉजी है वहाँ बहुत अच्छे दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से कर लें, मतलब सबकी आपको लगता है कि आपका जो सिस्टम वीक है, आप उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, उसे बार बार रिवाइज करें, ठीक है। जो MCQs आपको लगता है कि ये मुझे नहीं आता, उसके ऊपर स्टार बना लें। नेक्स्ट टाइम फिर आपके पास फिल्टर हो जाएंगे MCQs, बहुत कम MCQs होंगे आपके पास रिवाइज करने के लिए, ठीक है। SKs को भी आप चाहे ऐसे ही करते जाएँ, ठीक है। तो इस तरह करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाते जाएँ, ठीक है। और कोई भी इशू हुआ तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलें ठीक है, नेक्स्ट चलें फिर इंशाल्लाह हम कल करेंगे, ठीक है। क्लास एंड करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।